کے لیے مسار سے اوپننگ پریئر کے لیے مسار سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ آئے اور اوپننگ پریئر کریں. باپ بڑے رقدس کے نام سے آمین. اب آپ تک شکر ادا کرتے ہیں موقع دیں موقع میں حاضر ہیں باپ اس کا ادا کرتے ہیں ابھی موقع میں حاضر ہیں آپ ہم سب کھاتے باپ ہم جتنے بھی گیت گانے ورسز پڑھے ہمارے پاس برکت ہو ہم جو آپ گیت گائے آپ جن بچوں نے بھی گیت گا رہے ہیں آپ ان بچوں کے گلوں کے اوپر ہاتھ انہوں نے ورسز سنا رہی ہے ان کے اوپر آپ کا ہاتھ ہے آپ جو بھی شروع سنے ہیں آپ وہ سارے بچوں کے لیے باعث برکت ہے آپ پوری پیمنٹ کا ہال میں خاص نہیں تک کس طرح کی انٹرپشن نہ ہو باپ ہم سب خاص ہے آپ بیدن فروزہ اس نے قبول کی اسم سی ناصری کے نام میں آمین. آمین. God bless you. اب ہم بردر ارون سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور جو انہوں نے گیت یا کوئی ورڈ پریپیئر کیا ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. بردر ارون. پریز دی لارڈ. تیرے لہو سے پاپ دھوتا ہوں تیرے لہو سے پاپ دھوتا ہوں تو بڑھتا جا میں کم ہوتا ہوں تو بڑھتا جا میں کم ہوتا ہوں تیرا کلام دل میں رکھا ہے تیرا ہر ایک وعدہ سچا ہے تیرا کلام دل میں رکھا ہے تیرا ہر ایک وعدہ سچا ہے تیرا ہی نام سب سے اچھا ہے تیرا ہی نام سب سے اچھا ہے اپنی کنڈی سے ہاتھ دھوتا ہوں اپنی کنڈی سے ہاتھ دھوتا ہوں تو بڑھتا جا میں کم ہوتا ہوں تو بڑھتا جا میں کم ہوتا ہوں تیرے کلام سے شفا ہوتی تیرا کلام راہوں کی جوتی تیرے کلام سے شفا ہوتی تیرے کلام راہوں کی جوتی تیرا کلام عظیم موتی تیرا کلام عظیم موتی دل کی ملا میں روتا ہوں دل کی ملا میں روتا ہوں تو بڑھتا جا میں کم ہوتا ہوں تو بڑھتا جا میں کم ہوتا ہوں تیرے لہو سے پاپ دھوتا ہوں تو بڑھتا جا میں کم ہوتا ہوں. آمین. میں دوسرا گیت گاؤں گا. تالیاں بجاؤ میں تو کہو کہ یسوع زندہ ہے تالیاں بجاؤ میں تو کہو کہ یسوع زندہ ہے مل کر گاؤ میں تو مل کر گاؤ میں تو کہو کہ یسوع زندہ ہے تالیاں بجاؤ میں تو کہو کہ یسوع زندہ ہے تالیاں بجاؤ میں تو کہو کہ یسوع زندہ ہے طوفانوں کو حکم سناتا جو کہتا ہے وہ ہو جاتا طوفانوں کو حکم سناتا جو کہتا ہے وہ ہو جاتا طوفانی ہواؤں کو کہو کہ یسوع زندہ ہے تالیاں بجاؤ تو کہو کہ یسوع زندہ ہے تالیاں بجاؤ میں تو کہو کہ یسوع زندہ ہے چاند اور سورج کیا ہے تارے اس کے نقشے پائے سارے چاند اور سورج کیا ہے تارے سارے پائے نقشے پائے سب کو بتاؤ میں تو کہو کہ یسوع زندہ ہے تالیاں بجاؤ میں تو کہو کہ یسوع زندہ ہے تالیاں بجاؤ میں تو کہو کہ یسوع زندہ ہے بادلوں کو جو رنگ بھرا ہے پانی پر وہ چلتا ہے بادلوں کو جو رنگ بھرا ہے پانی پر وہ چلتا ہے آنکھیں اٹھاؤ میں تو
आंखें उठाओ मत कहो कि यीशु जिंदा है, तालियां बजाओ मत कहो कि यीशु जिंदा है, तालियां बजाओ मत कहो कि यीशु जिंदा है। जो भी उसके दर पे आए खाली हाथ वो कभी न जाए, जो भी उसके दर पे आए खाली हाथ वो कभी न जाए। हाथ उठाओ मत हाथ उठाओ मत कहो कि यीशु जिंदा है, तालियां बजाओ मत कहो कि यीशु जिंदा है, तालियां बजाओ मत कहो कि यीशु जिंदा है। आमीन। मैं एक वर्ष पढ़ूंगा। खुदावंद मेरी चट्टान मुबारक और जो मेरी आयतों को जंग करना मेरी उंगलियों को लेना सिखाता है। मैं दूसरी आयत पढ़ूंगा। खुदावंद मेरी तरफ से जंग करेगा और मैं खामोश रहूंगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। अब हम सिस्टर रूथ से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए और जो है गीत या वर्षों पे की हमारे साथ शेयर करें। सिस्टर रूथ। आवाज आ रही है? हाँ जी। दिया गालिब जब तक। जी जी जी। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसे मैं पसंद हूँ, इसकी सुनो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल जो मोहब्बतां दी मैनू खुशबू आंदी है, बाइबल जो मोहब्बतां दी मैनू खुशबू आंदी है। ताइयों ते जान मेरी, ताइयों ते जान मेरी सना रब दी गोंदी है, बाइबल जो मोहब्बतां दी मैनू खुशबू आंदी है। सच्चे फुल्लां दा गुलदस्ता महका वंडी जावे, हकल के दुल्हने ले मेरी जिंदगी नूर शनावे। सच्चा फुल्चे फुल्लां दा गुलदस्ता महका वंडी जावे, कल के दुल्हने ले मेरी जिंदगी नूर शनावे। सुबह ते शामा नू मेरी प्यास बुझाउंदी ए, सुबह ते शामा नू मेरी प्यास बुझाउंदी ए। ताइयों ते जान मेरी, ताइयों ते जान मेरी सना रब दी गोंदी ए, बाइबल जो मोहब्बतां दी मैनू खुशबू आंदी ए। ए जिंदगी दी रोटी नाले ए जिंदगी दा पानी, कुदरत दा अनमोल खजाना स्वर्गी अमृत बानी। कल जिंदगी दी रोटी नाले ए जिंदगी दा पानी, कल के कुदरत दा अनमोल खजाना स्वर्गी अमृत बानी। सुबह वाले जी चाह के मेरी प्यास बुझाउंदी ए, लखवार जी चाह के मेरी प्यास बुझाउंदी ए। ताइयों तो जान मेरी, ताइयों ते जान मेरी सना रब दी गोंदी ए, बाइबल जो मोहब्बतां दी मैनू खुशबू आंदी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु ते जे तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया तो होर की लैना, मैं दुनिया तो होर की लैना। करना
رول نظراں تو میں تینوں بس ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਸ ਉਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦਸ ਤੇਰਾ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਭਜਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਾਤਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਕਰ ਕਰ ਉੱਪਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਾਤਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਕਰ ਕਰ ਉੱਪਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਜ਼ਾਲਿਮ ਜਹਾਨ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਜਾਲ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਾਪਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਜ਼ਾਲਿਮ ਜਹਾਨ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਜਾਲ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੇਵਲੇ ਤਲਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है मेरा खुदा बड़ा है आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे चुना है आए मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है मेरा खुदा बड़ा है अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन होगा विशाल तरबल जो बीत जो पड़ा है ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है मेरा खुदा बड़ा है मेरा खुदा बड़ा है आमीन प्रेज़ लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। अब हम सिस्टर रूथ से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए और जो उन्हें गीत या वर्शिप प्रेयर की हमारे साथ शेयर करें। सिस्टर रूथ। हेलो Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया Jesus is Song. Story. Okay.
Noah got mad. You bad people. When Noah ark baya. Noah family and started animals ocupaya. Both which got shut. Kitty doll. 40 nights and 40 days. Raided होया पे जो सारा फिनिश हो गया सारा फिर फिनिश बहुत सारे बाहर फिर बहुत सारे बाहर आ गए फिर गॉड रेनबो रेबो बाय फिर गॉड के बाहर आ दो और Baby Noah and animals. praise the Lord. Praise the Lord. So Jesus love me. Jesus, the day sign for the Bible that is so little To him belong that they see we have been called. we song. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Alright. Yeah. क्या ओके चलता तू मेरा गाना जदों जलूदी 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 अजूदिया जाते जलूदिया जाते जकले आजार होते हैं जकले आजार होते हैं जकले Yudane, Obadana Kujadene, Obadana Kujadene, Jaludi, 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 Jaludi. Hallelujah. How you the better Lord? How you the better Lord? Praise the Lord. God bless you. अब हम ब्रदर सुलेमान से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए और जो है गीत या व्हाट्सएप पे कि हम आपसे शेयर करें. ब्रदर सुलेमान. Praise the Lord. Thank you. Praise the Lord, everyone. तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु में है जिसे हो बातें छुटकारा तेरे लहू में है जिससे हम पाते छुटकारा तूने कभी किसी मांगा किसी से कुछ चाहा लहू बड़ा कीमती है प्रभु तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु जीसस का जो ब्लड है ना वो सबको कवर कर लेता है और जीसस आगे बढ़े जाते हैं और जीसस
اور جو یسوع مسیح ہوتے ہیں نا وہ اپنے محل میں لے کے آ جاتے ہیں. اور جو ہوتا ہے نا شیطان وہ اپنی عادتوں سے یسوع کو پکڑنے کے لیے لیکن یسوع کا لہو جو ہوتا ہے وہ اس سے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. ہاللویا. Praise the Lord, God bless you. اب ہم سسٹر اجالا سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آئیں جو نے گیت یا ورس پہ کے ماسٹر شیئر کریں. سسٹر اجالا. ہیلو. Praise the Lord. Praise the Lord. آپ اوپروں ہاتھ اٹھا کے ہاتھ بڑھا کے مینوں رب بچاوے گا. او ڈونگے پانی وچوں مینوں کھینچ لے جاوے گا. او زور میرا ہے میرا پیار ہے او دینا. میرے باری دھوتے دشمن جنہ ویر ودایا ہے. او نہ کھولو میرے رب نے مینوں آپ چھڑایا ہے. او زور میرا ہے میرا پیار ہے او دینا. آپ اوپروں ہاتھ ودا کے مینوں رب بچاوے گا. او ڈھونگے پانی وچوں مینوں کھینچ لے جاوے گا. او زور میرا ہے میرا پیار ہے او دینا. میرا کیتا سامنا ہونا جدو سال میں پتا نال پر خداوند میرا رب سی میرا او چھڑانے والا. او زور میرا ہے میرا پیار ہے او دینا. آپ اوپروں ہاتھ بڑھا کے مینوں رب بچاوے گا. مینوں کھلے تھان دے اوتے آپ کڈ لیا سی. مہربان ہے میرے اوتے مینوں رب آپ چھڑایا سی. او زور میرا ہے میرا پیار ہے او دینا. آپ اوپروں ہاتھ ودا کے مینوں رب بچاوے گا. او ڈونگے پانی وچوں مینوں کھینچ لے جاوے گا. او زور میرا ہے میرا پیار ہے او دینا. آمین. 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 پریز دی لارڈ. اب ہم سسٹر سربجیت کے بچوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آئیں جو نے گیت یا واٹس ایپ کے ماسٹر شیئر کریں. ہاں جی پریز دی لارڈ سسٹر جی سارے نے. ہاں جی منت پریز دی لارڈ کو پکڑ. پریز دی لارڈ. نہ کدے رہن دے گا تینوں او اٹھاوے گا. ڈگیا نہ کدے رہن دے گا تینوں او اٹھاوے گا.
ਕਦੇ ਰਹਿਣ ਦਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਠਾਵੇਗਾ, ਟਿਕਿਆ ਨਾ ਕਦੇ ਰਹਿਣ ਦਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਉਠਾਵੇਗਾ। ਰੋ ਮਸਰੀ ਯਸੁ ਨਾਸਰੀ, 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 ਯਸੁ ਨਾਸਰੀ। ਟਿਕਿਆ ਨਾ ਕਦੇ ਰਹਿਣ ਦਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਠਾਵੇਗਾ, ਟਿਕਿਆ ਨਾ ਕਦੇ ਰਹਿਣ ਦਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਠਾਵੇਗਾ। ਰੋਣ ਕਦੇ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾਸਰੀ। ਰੋਣ ਕਦੇ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾਸਰੀ। ਡਿਗਿਆ ਨਾ ਕਦੇ ਰਹਿਣ ਦਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਉਠਾਵੇਗਾ, ਡਿਗਿਆ ਨਾ ਕਦੇ ਰਹਿਣ ਦਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਉਠਾਵੇਗਾ। ਰੋਣ ਕਦੇ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾਸਰੀ। 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 ਡਿਗਿਆ ਨਾ ਕਦੇ ਰਹਿਣ ਦਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਉਠਾਵੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜੀਜ਼ ਮੰਨਿਆ। ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ ਸਿਸਟਰ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਗਈ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੌਂਗ। और गाएंगी? हाँ जी, मैं गा दूँ सिस्टर जी? जी जी गा लें। 1 सेकंड सिस्टर जी, 1 सेकंड। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੀ। ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। मेरा सॉन्ग आपकी मैं शरण में आई सॉन्ग। दुखों से बहुत घबराई मेरे प्रभु जी, आपकी मैं शरण में आई मेरे प्रभु जी, मैं आपकी मैं शरण में आई। दुखों से बहुत घबराई मेरे प्रभु जी, आपकी मैं शरण में आई मेरे प्रभु जी, आपकी मैं शरण में आई। खाली झोली लेके तेरे दर पे, खाली झोली लेके तेरे दर पे प्रभु जी, खुशियां मांगने आई मेरे प्रभु जी, मैं खुशियां मांगने आई। तेरे दर खुशियों का सागर चलता, एक बूंद मैनू भी पड़ाई मेरे प्रभु जी, एक बूंद मैनू भी पड़ाई। इस दुनिया में तेरे बच्चे तुमको पुकारते हैं, उनको भी मिल के जाई मेरे प्रभु जी, उनको भी मिल के जाई। खाली झोली लेके तेरे दर पे मैं बैठ गई, मुझको ना ठुकराई मेरे प्रभु जी, मुझको ना ठुकराई, मुझको ना ठुकराई मेरे प्रभु जी। खाली झोली खुशियों को पाई, खाली झोली खुशियों को पाई मेरे प्रभु जी, खाली झोली खुशियों को पाई। जंगल तूफानों से घिरी हुई थी, मैं तेरे पास में आई। आप बुलाया मुझको प्रभु जी, आपने आप बुलाया,
आप बुलाया मुझको प्रभु जी, आपने आप बुलाया मुझको प्रभु जी, खुशियों का सागर मुझको प्रभु जी, खुशियों का सागर लेने आपसे आई। दुखों से बहुत घबराई मेरे प्रभु जी, आपकी मैं शरण में आई मेरे प्रभु जी, आपकी मैं शरण में आई। इस दुनिया पे जो बच्चे तेरे, उनको फूलों जैसे महकाई मेरे प्रभु जी, फूलों जैसे महकाई। सुंदर दुनिया जो तुमने बनाई, इनको स्वर्ग ले जाई मेरे प्रभु जी, इनको स्वर्ग ले जाई। इनको स्वर्ग ले जाई मेरे प्रभु जी, इनको स्वर्ग ले जाई। जिंदगी मेरी तेरे लिए प्रभु जी, इसको पार लगाई मेरे प्रभु जी, इसको पार लगाई। इसको पार लगाई मेरे प्रभु जी, मुझे हिम्मत शक्ति दिलाई मेरे प्रभु जी, मुझ पर दया बरसाई। मुझ पर दया बरसाई मेरे प्रभु जी, दुनिया पे दया बरसाई। दुखों से बहुत घबराई मेरे प्रभु जी, आपकी मैं शरण में आई मेरे प्रभु जी, आपकी मैं शरण में आई। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, God bless you. अब हम सिस्टर उजाला से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए, जिन्होंने और गीत गाना है वो गाएं। सिस्टर उजाला। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन सुनता है दुआ, खुदावन देता है जवाब, खुदावन रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। खुदावन सुनता है दुआ, खुदावन देता है जवाब, खुदावन रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। यीशु ने कहा तुम मेरे बाप से कुछ मांगते नहीं, कुछ पूछते नहीं। अगर तुम मेरे बाप से, अगर तुम मेरे नाम से कोई मांगोगे दुआ, खुदावन देता है जवाब। कोई मांगोगे दुआ, खुदावन देता है जवाब। खुदावन सुनता है दुआ, खुदावन देता है जवाब, खुदावन रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, घुटनों पे बैठ कर मांगता था वो। बड़े जोर से उसने, बड़े होश से उसने एक मांगी थी दुआ, बरसों बादल न बरसा। एक मांगी थी दुआ, बरसों बादल न बरसा। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, घुटनों पे बैठ कर मांगता था वो। फिर बड़े जोर से उसने, बड़े होश से उसने एक मांगी जो दुआ, छमछम बादल था बरसा। एक मांगी जो दुआ, छमछम बादल था बरसा। खुद एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, घुटनों पे बैठ कर मांगता था वो। खुदावन सुनता है दुआ, खुदावन देता है जवाब, खुदावन रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। आमीन। आमीन। Amen. Praise the Lord. Luke chapter 6 verse 27. But I say to you who hear, love your enemies and do good to those who hate you. Luke chapter 7 verse 27. This is he of whom it is written, behold, I say my messenger before your face, who will prepare your way before you. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. जो आपको याद है वो वाली करें।
कोई नहीं होगी। Okay. Okay. The end of storm. God did not forget about Noah and the animals with him in the boat. So God made a wind blow and the water started going down. 40 days later, 40 days later, Noah opened a window to send a raven, but it kept flying around until the water had dried up. Noah wanted to find out if the water had gone down. He sent out a dove. Deep water was still everywhere, and the dove could not find a place to land. So it flew back to the boat. Noah held out his hands and helped it back in 7 days. Later, Noah sent the dove out again. It returned in the evening, holding in its beak a green leaf from an olive tree. Noah knew that the water was finally going down. He waited 7 more days before sending the dove out again. And this time it did not return. Noah made an opening in the roof of the boat and saw that the ground was getting dry. God said to Noah, "You and your wife, your son, and your daughter-in-law, they now may now leave the boat." After Noah and his family had gone out of the boat, and living creatures left in groups of their own kind, God said to Noah and his sons, "I promise every living creature that the earth and those living on it will never again be destroyed by a flood. The rainbow that I have put in the sky will be my sign to you and every living creature on earth. It will remind you that I will keep the promise forever. When I say the rainbow in the sky, I will always remember the promise that I have made to every living creature. The rainbow was be the sign of the Solomon promise." Amen. अभी रोशनी Praise the Lord. The Lord is my shepherd. I shall I shall not what want. He make my me he make Mm. me to lie Mm. down Mm. in green pleasant Pastures. pastures. Okay. He Leads me he makes me my beside lie the the still still water. Psalm Psalm 23 Psalm chapter 23 verse 1 or 2. verse 1 to
Praise the Lord. Praise the Lord, God bless you. अब हम ब्रदर दाऊद और डैनियल से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए जिन्हें गीत या वर्स प्रिपेयर किए हमारे साथ शेयर करें. ब्रदर दाऊद और डैनियल. हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड. 1 मिनट बस. Praise the Lord. Psalm 103, verse 2. Praise the Lord, my soul, and do not forget how kind He is. Proverbs 12, verse 24. Hard work will give you power. Being lazy will make you a slave. Proverbs 12, 24. Amen.
Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। अब हम स्टोरी रीडिंग के लिए सैर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए और आज जो स्टोरी है वो सुनाए। Praise the Lord. आज की जो हमारी स्टोरी है वो बदाश की किताब उसके 6 बाब में से ली गई है, नूह की कश्ती के बारे में। खुदा ने देखा कि इंसान मेरी मर्जी के मुताबिक ना रहा, लेकिन खुदा नूह नामी एक शख्स से बहुत खुश था। नूह के 3 बेटे थे, सिम, हाम और याफत। उन दिनों सिर्फ नूह ही एक अच्छा आदमी था। वो खुदा को अजीज था। नूह के कामों से खुदा खुश था। खुदा ने नूह से कहा, मैं इन सब लोगों को हलाक कर दूंगा। इनकी बदी के बायस जमीन रहने के काबिल ना रही है। तू अपने लिए एक बहुत बड़ी कश्ती बना, मैं तुझे उसका नाप दूंगा। उसके अंदर कोठरियां बना, उसके अंदर और बाहर एक किस्म का गुण लगा जो राल है। मैं जमीन पर एक तूफान भेजूंगा जो हर एक जानदार को हलाक कर देगा, लेकिन मैं तुझसे एक अहद बांधूंगा। तू कश्ती में अपनी बीवी के साथ जा, अपने बेटों और उनकी बीवियों को भी साथ ले जा। हर एक जानवर परिंदे का एक नर और एक मादा कश्ती में साथ ले जा। तू अपने लिए, जानवरों के लिए और परिंदों के लिए हर किस्म की खाने की चीजें भी रख लेना। नूह ने सब कुछ उसी तरह किया जैसा खुदा ने उससे कहा था। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। अब हम सिस्टर शहीन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए और प्रेयर मीटिंग को आगे लीड करें। सिस्टर शहीन। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू समर। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपको अपने नाम, अपने जलाल के लिए बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल करता रहे। खुदावंद आपके जरिए बहुत सी रूहों को बचाए और आप हमेशा खुदावंद से जुड़ी रहें, खुदावंद के पासों में छुपे रहें। खुदावंद आपको अपनी आमद के लिए पाक दामन कमवारी की माने तैयार करे। गॉड ब्लेस यू। हम सारे बच्चों के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमारे बच्चों को, जो कि हमारे नहीं हैं, खुदावंद के हैं, खुदावंद ने अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल किया। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं। खुदावंद की तारीफ हो के खुदावंद उनको तैयार करता है और खुदावंद अपनी हमद के गीत, अपने नाम को जलाल देने के लिए खुदावंद इस्तेमाल करता रहता है। खुदावंद का मसा आपके ऊपर हमेशा ठहरा रहे। खुदावंद का मसा जिस तरह सैमुअल पे ठहरा हुआ था, बचपन ही से खुदावंद उसके साथ बोलता था, बातें करता था। खुदावंद इसी तरह आपके साथ ख्वाबों में, रोया में कलाम करता रहे और खुदावंद की आवाज आप अभी से सुनने वाले और उस पे अमल करने वाले हों। जिस तरह हनोक जो था खुदा उनके साथ साथ चलता रहा, खुदा उनकी रूह की हदायत के मुताबिक जिंदगी उसने गुजारी। खुदा उनके कलाम के जो खुदावंद उससे करता था उसके मुताबिक उसने जिंदगी गुजारी। बिल्कुल इसी तरह खुदावंद का मज़ा आपके ऊपर ठहरा रहे। खुदावंद की मीठी आवाज को, जिस तरह वो आदम और हवा से बातें किया करता था, इसी तरह वो आपके साथ भी बातें करें। और खुदावंद जहां जहां आप जाएं, स्कूलों में, कॉलेजेस में, जॉब पे, खुदावंद की हुजूरी आपके ऊपर ठहरी रहे। जहां जहां आपके पाँव का तलवा टिके, खुदावंद वो जगह आपको दे दे। खुदावंद आपको बुलंदियों पे लेके जाए, सरफराज करे। आप जहां पे भी हों, स्कूल में, कॉलेज में, जहां भी आप जाएं, आप अपने हमसरों से ज्यादा खुदावंद का मसा आपके ऊपर रहे, ताकि आपकी जिंदगी से, आपके बदनों से खुदावंद यीशु मसीह को इज्जत और जलाल मिलता रहे। लोग जब आपको देखें तो वो आपको ना देखें, बल्कि आपके अंदर से वो खुदावंद यीशु मसीह को देखें। खुदावंद की खुशबू उनको मिले, खुदावंद की सांसों की आवाज उनको मिले। जब भी आप बोलें तो आपके मुंह से खुदावंद का कलाम निकले। जब भी आप कोई काम करें वो खुदावंद की हिकमत से, समझ से
آپ کریں. خداوند کا گہرا مزہ، گہری حضوری آپ کے پر ٹھہری. آپ خداوند کے اور اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہیں. آپ جہاں ٹیچرز کے خداوند کے فضل سے آپ ان کی فرما برداری میں چلے. ہمیشہ اونچے درجوں پہ رہیں، ہمیشہ اول درجوں پہ رہیں، بلندیوں پہ لے کے جائے خداوند آپ کو. گاڈ بلیس یو. اور خداوند اپنی آمد کے لیے پاک دامن کمواری کی مانند آپ سب کو، بچوں کو خدا تیار کرے، تاکہ کوئی بھی ہمارے بچوں میں سے ایسا نہ ہو جو خداوند سے دور ہو. ہمیشہ خداوند آپ کو اپنے پروں میں چھپا کے رکھے، اپنے سینے سے لگا کے رکھے، اپنا شفقت برا ہاتھ ہمیشہ آپ کے اوپر بڑھائے رکھے. گاڈ بلیس یو. خداوند کا شکر ہو، خداوند کی تعریف ہو. ہم روٹی اور پانی کے لیے دعا کریں گے. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں اس تیرے بدن کے لیے، اس لہو کے لیے خداوند یسوع مسیح جو تو نے ہماری خاطر بہایا، تاکہ ہم شفا پائیں، نجات پائیں، زندگی پائیں، تسلی، اطمینان خداوند تیری طرف سے حاصل کرتے رہیں. یسوع کے نام سے ہم ایمان سے اس پانی کو لیں جو کہ اب خداوند یسوع مسیح کے لہو میں تبدیل ہو گیا ہے، اور اس روٹی کو لیں جو کہ خداوند یسوع مسیح کے بدن میں تبدیل ہو گئی ہے. جب ہم اس کو لیں تو ہمارے اندر سے وہ ساری نافرمانیاں، وہ خطائیں، وہ غلطیاں، وہ کوتاہیاں، وہ گندے بہیویئر، وہ بیماریاں، لعنتی یسوع کے نام سے ختم ہو جائیں. آمین. ان کا شکر ہو، خدا ان کی تعریف ہو. ہم بچے بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں اور ہم بھی تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. تو آج جو تیسرا چیپٹر ہے جس میں ہم سیکھیں گے کہ جس انسان کو خدا نے بنایا اس نے نافرمانی کی. تو کوئی ریڈ کر سکتا ہے تیسرا چیپٹر جو میں کروں گا. ہاں جی کریں. تھینک یو. پریز گاڈ. یہ میں اس کی سٹوری بتاؤں گا آدم و حوا کی. جب خدا نے آدم و حوا کو بنایا تھا تو اس کے درمیان میں ایک درخت تھا جس کا پھل کھانے سے خدا نے منع کیا تھا. تو وہ خدا نے کہا تھا کہ یہ باقی سارے آپ کھا سکتے، لیکن جو باغ کے درمیان والا درخت ہے نا اس کا پھل آپ نے نہیں کھانا. لیکن ادھر ایک شام کے روپ میں شیطان آیا تھا اور وہ آدم پیڑ کے وہ لینے گئی تھی پھل. تو وہ شیطان نے اس کو برگلا کے کہا تھا کہ اگر یہ تم کھاؤ گی تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی کہ تم کیسے جی رہے ہو اور کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ. تو پھر وہ اس نے کھایا تھا، آدم کو بھی اس نے برگلایا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا ان کے ساتھ خدا نے ان کو کھانے سے منع کیا تھا، لیکن انہوں نے کھا لیا تھا، انہوں نے نافرمانی کی تھی. تو پھر خدا آیا تھا کہ آدم اور حوا چھپ گئے تھے کہ تو خدا نے کہا تھا کہ آدم اور حوا کہاں ہو تم؟ تو وہ کہتے ہیں ہم ادھر چھپے ہوئے ہیں. تو وہ آدم اور حوا خدا نے کہا کہ تم کیوں چھپے ہوئے ہو؟ کہتے کہ آدم اور حوا نے کہا تھا کہ کیونکہ ہم ننگے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ خدا نے کہا تھا کہ کس نے تمہیں کہا ہے کہ تم ننگے ہو؟ تو خدا نے کہا تھا کہ تم نے اس کا پھل کیوں نہیں کھایا؟ تو انہوں نے اپنے گناہ کی پھر سزا بھی بھگتی تھی. خدا نے ان کو باغ سے نکال دیا تھا. آمین. آمین. پریز گاڈ. ہاللیلویا. گاڈ بلیس ارون. خداوند آپ کو برکت دے. اور آپ نے تو ساری جو سٹوری تھی وہ سنا دی. پریز گاڈ. پریز گاڈ. ہاللیلویا. میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں. تیسرا جو چیپٹر ہے، گاڈ بلیس یو ارون، آپ نے وہ ساری سٹوری بتا دی ہے جو
बतानी थी, लेकिन मैं चलें थोड़ा सा बस इसका जिक्र करती हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास अब थोड़ा है, तो इसलिए हम चैप्टर को पढ़ते नहीं हैं। हमने पीछे थोड़ा सीखा था कि खुदावंद ने इंसान को बनाया था, पहले जमीन आसमान को बनाया 6 दिन में, और 7वें दिन खुदावंद ने आराम किया, और फिर खुदावंद ने आदम को बनाया, मतलब 6ठे दिन, और आदम से हवा को बनाया था। ये हमने थोड़ा सीखा था, है ना। और बाग के दरमियान में जो खुदावंद ने बाग अदन लगाया था, बनाया था, आदम और हवा को वहां रखा था निगे पानी के लिए, और वो नंगे थे, लेकिन उनके इस तरह के जलाली बदन थे, है ना। और खुदावंद ने जो दरमियान में 2 दरख्त लगाए थे, खुदावंद ने वो कहा कि वो उसका जो फल है वो नहीं खाना। एक था जिंदगी का दरख्त, और दूसरा जो था कह लें नेको बद का जो दरख्त था, उसका फल खुदावंद ने खाने से मना किया था, जो कि आज का हम कह लें सीखेंगे कि आदम और हवा ने जिस दरख्त का फल खाने से खुदावंद ने मना किया था, इंसान ने जिसको खुदा ने बनाया था, और उस इंसान ने खुदावंद की नाफरमानी की। खुदावंद की बात जो थी, जो खुदावंद ने कह लें एक ही तब जो हुक्म था दिया था, या कानून जो था बनाया था, खुदावंद के बंदा जो आदम था, उसने इसको, आदम और हवा ने उसको तोड़ दिया था, नाफरमानी की थी, खुदावंद की बात को नहीं माना था। और जो शैतान था, या इसमें सांप लिखा हुआ है, लेकिन हमें जो मुकाशवा की किताब है उसका 12 बाब और उसकी 9 आयत में ये साफ पता चलता है कि वो शैतान था। सांप जो था वो शैतान था वहां पे, क्योंकि साफ लिखा हुआ है कि मुकाशवा की किताब 12 बाब और उसकी 9 आयत में लिखा हुआ है कि वही पुराना सांप, वही शैतान जो अबलीस कहलाता है, जिसने हवा को और आदम को यानी बहकाया था, हवा को बहकाया था, वो ही सांप, है ना, जिसको आखिरी जो जमाना होगा उसमें लिखा है कि आसमान से गिरा दिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो सांप है ये असल में शैतान था या शैतान है, जिसने आदम और हवा को जो था बहकाया था। उन्होंने नाफरमानी की, उन्होंने बगावत की खुदा उनके साथ, और उन्होंने वो फल जो था खा लिया नाफरमानी का, जो खुदा ने एक किस्म का बाग के दरमियान में जो दरख्त लगाए हुए थे, है ना। तो इसलिए वहां से कह लें कि नाफरमानी जो थी वो शुरू हुई। कह लें पहला इंसान जो था आदम और हवा ने, है ना। और वो कह ले 3 तरह की जो आजमाइश थी जो हवा के ऊपर आई थी, यानी उसने आंखों से उस फल को देखा था, और उसके अंदर उसको खाने की जो थी एक ख्वाहिश जो थी वो पैदा हुई, और उसने जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा किया। तो इसलिए 3 तरह से जो हवा थी वो आजमाई गई थी। यानी उसने आंखों से देखा और उसको वो अच्छा लगा, लिखा है खुशनुमा लगा। तो और खाने की, और उसने जिस्म की ख्वाहिश को पूरा किया, यानी हमारे जिस्म को क्या है, खाने की जरूरत है या खुराक की जरूरत होती है, और उसने जिस्म की ख्वाहिश को पूरा किया। तो यही अब तक कह लें आजमाइशें जो है हमारे ऊपर भी आती हैं कि हम आंखों के जरिए गुनाह जो है या बुरी ख्वाहिशें जो हैं वो पैदा होती हैं। और खाने का, जैसे कि मैं कहूंगी कि वही आज तक कह लें हम इंसान जो कुछ बोते हैं, जो कुछ वो खाने के लिए सब कुछ करते हैं, या जॉब करते हैं तो खाने के लिए करते हैं। तो उसमें हम कह लें कि कई दफा गलत तरीके जो हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। या अगर हम इस तरह देखें कि जैसे रोजा रखना है हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल होता है। हम
खाए बगैर रह नहीं सकते। तो बिल्कुल इसी तरह वही आजमाइशें जो हैं अभी मेरे ऊपर और आपके ऊपर भी आती रहती हैं, और हम जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करते रहते हैं। खुदावंद ने जो हमें हुक्म दिया है उसको पूरा नहीं करते, और शैतान ने उनको बहकाया, शैतान ने हवा को बहकाया था, और शक उसके दिल में पैदा किया था कि क्या वाकई ही ये फल खाने से या खुदावंद ने मना किया है। और जो हवा थी उसके बहकावे में आ गई, उसने कहा कि उसने उसकी बात को माना जो शैतान बोल रहा था, जो इब्लीस बोल रहा था, लेकिन वो खुदा की बात को जो थी, जो खुदावंद ने हुक्म दिया था, उसको भूल गई। तो बिल्कुल इसी तरह हम भी अब भी कह ले शैतान के बहकावे में आ जाते हैं। हमें कई दफा जैसे छोटे जो बच्चे हैं या हम भी कह लें, खुदा का कलाम अगर नहीं भी पढ़ा बहुत से लोगों ने, लेकिन हमें पता होता है कि हमें सच बोलना है, लेकिन हम उस जगह पे झूठ बोल देते हैं। हम अपनी जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करते हैं। हम खुदावंद की बात को अव्वल दर्जा नहीं देते, और हम शैतान के बहकावे में आ जाते हैं। लोग जो हैं या हमारे दोस्त होते हैं या कहीं पे भी हम होते हैं, तो उसकी बातों में हम फंस जाते हैं। हमें माँ बाप ने फर्ज करें कहीं कोई चीज लेने से या कहीं जैसे स्कूल से या कई दफा होता है कॉलेज से जाने, किसी की दूसरे के घर में जाने से मना किया होता है कि नहीं सीधे घर आना है, कहीं रुकना नहीं है, किसी जो जानते नहीं है हमें गैर लोग हैं उनसे मिलना नहीं है, रास्ते में कहीं ना रुकना। लेकिन हम क्या है अपने माँ बाप की बात को भूल जाते हैं या उनकी नाफरमानी कर देते हैं, लेकिन लोगों की बात जो है वो सुन लेते हैं, जिनके अंदर कह लें शैतान जो है हमें बहका रहा होता है, हमें हमसे वो नाफरमानी करवाता है कि अपने माँ बाप की हम बात नहीं मानते या खुदा की बात नहीं मानते। तो बिल्कुल वही आजमाइशें कह लें मेरे ऊपर और आपके ऊपर आती रहती हैं कि हम अम, खुदा के कलाम को कह लें पहला दर्जा नहीं देते, या खुदा को तो छोड़ देते हैं, लेकिन शैतान को हम नहीं छोड़ते। हम खुदाउन की बात को अव्वल दर्जा नहीं देते, लेकिन जो इर्द गिर्द के हमारे दोस्त होते हैं, जैसे आजकल बहुत हमारे बच्चों के ऊपर प्रेशर होता है, फैशन का कह लें या मूवीज का, गानों का, और हम जो हमारे माँ बाप ने मना किया होता है हम वो बात नहीं मानते कि वो ये जो है ये कह लें कि एक किस्म का शैतान की तरफ से है ये। और आजकल तो बहुत ही ज्यादा गानों में हम सुनते हैं कि एक किस्म की गालियां निकाल रहे हैं, या वो कई तो गाने बिल्कुल ऐसे होते हैं कि उसमें वो अपने आप को खुद ही कह रहा होता है कि मैं डेविल हूँ, मैं शैतान हूँ, है ना। और हम हमारे बच्चे वो गा रहे होते हैं। तो इसलिए हम जो है अपने माँ बाप की या खुदा की बात को नहीं मानते और हम नाफरमानी करते हैं, है ना। तो जैसे कि उनका हम देखते हैं कि उनको सजा मिली थी, खुदा ने सजाएं सुनाई जब उन्होंने नाफरमानी की। हम थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करें तो बिल्कुल वही जैसे कह लें सजाएं जो है अगर हम नाफरमानी कर रहे हैं तो हमारी जिंदगी में भी आएंगी। जिस तरह शाम को खुदा ने कहा कि तू पेट के बल चलेगा, इसका मतलब है कि पहले शैतान जो है वो चलता था और वो बोलता था, और लेकिन खुदावन ने उसको सजा दी कि तो पेट के बल चलेगा और खाक चाटेगा। तो ये शैतान को जो थी या उस सांप को जो सजा थी वो मिली। औरत को जो थी सजा मिली कि तू दर्द से बच्चे जनेगी और तेरी रगबत जो है अपने शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। तो एक किस्म की ये सॉरी औरत की सजा क्या है कि वो बच्चे जनेगी दर्द से, तकलीफ से। और बाइबल से हमें पता चलता है कि ये सबसे जैसे कह लें ज्यादा दर्द जो है वो जो दर्द सह लगते हैं, यानी औरतों को जब बच्चा पैदा होते हैं तो वो जो दर्द होते हैं वो सबसे ज्यादा दर्द है। बाइबल के हिसाब से हमें यही पता चलता है ना। तो ये एक सजा जो थी औरत को मिली, क्योंकि औरत ने क्या किया था, शैतान की बात या सांप की जो बात थी वो मानी थी। और ये भी एक किस्म की कह लें कि सजा ही है
کہ جو عورت ہے وہ ہمیشہ اس کا توجہ جو ہے یا اس کا وہ اپنے شوہر کی طرف ہی لگی رہتی ہے، یا اس کا دھیان یا اس کا گیان جو ہے ہمیشہ اپنے شوہر کی طرف، اپنے ہسبینڈ کی طرف ہوتا ہے. تو یہ بھی کہہ لیں کہ ایک سزا ہے. اور وہ جو شوہر ہے وہ عورت پہ حکومت کرے گا، یعنی بیوی کے اوپر حکومت کرے گا، یہ بھی سزا ہے. تو اس لیے یہ عورت کو سزا ملی اور آدم کو سزا ملی کہ تو کیا کرے گا، مشقت کے ساتھ پیداوار کھائے گا. تیرے کانٹے اور اونٹ، تیری زمین یا کھیت میں کیا ہوگا، کانٹے اور اونٹ کٹارے جو ہیں وہ اگے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا، پسینے کی روٹی کھائے گا. یعنی محنت مشقت جو ہے وہ آدمی کو ایک قسم کی سزا ملی کہ وہ پیداوار کھائے گا، یعنی جو اپنی محنت سے مشقت سے وہ لگائے گا، یا جیسے آج کل جو جاب ہے وہ کرتے ہیں. تو یہ ایک مرد کی یا ایک شوہر کی یا آدم کی جو تھی یہ سزا تھی. تو اس لیے تینوں کو سزا ملی، سام کو بھی، عورت کو بھی، اور آدم کو بھی سزا ملی. تو یہ ہی کہہ لیں اب تک جتنے بھی ہم ہیں، عورت ہے، مرد ہے، بیوی، شوہر ہے، یا یہ سانپ ہے، اس کو سزا جو ہے اب تک بھگت رہے ہیں ہم کہہ لیں. لیکن جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں تو یہ مشقتیں ساری خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے اوپر اٹھا لی. جو ہماری مشقتیں تھی وہ خداوند نے اٹھا لی، اور وہ سارے درد، وہ تکلیفیں جو تھی وہ اپنے اوپر، جیسے کہ عورت کی کہہ لیں، ایک جگہ لکھا ہے کہ عورت جو ہے وہ یہ جو بچے جب جنتی ہے درد سے تو اس کو نجات ملتی ہے، یعنی سلویشن جو ہے وہ ملتی ہے. اور عورت کا اگر ہم دیکھیں تو اب جو ہماری رغبت جو ہے یا ہماری توجہ یا ہمارا دھیان جو ہے ہر وقت کس کی طرف خداوند ہمیں اب بتاتا ہے، یا خداوند کے کلام میں سے ہمیں ملتا ہے کہ ہماری رغبت جو ہے اب جو ہے ہمارا جو آسمانی شوہر ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح، اس کی طرف جو ہے وہ لگی رہی. اس لیے ہمارے سارے درد، عورت کی بھی جو کہہ لیں یہ سزائیں ہیں یا جو کچھ بھی خداوند نے اس کے بارے میں کہا تھا، وہ جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں، یا مرد جو ہے وہ بھی، تو اس کی ساری مشقتیں، اس کے ساتھ جو اتنی محنت کرتا ہے، کیونکہ آگے چل کے ہمیں ملتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے. تو اس لیے یہ سزائیں جتنی بھی خداوند نے دی کہ وہ جب ہم مسیح میں جیسے کہہ لیں آ جاتے ہیں، اس میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ ہماری ساری جو سزائیں ہیں عورت کی اور مرد کی وہ کہہ لیں ختم ہو جاتی ہیں. یا کہہ لیں اس طرح کا جو ایک، کیونکہ زمین کیا تھی، لانتی ہو گئی تھی. آدم کو خدا نے کہا کہ تیری وجہ سے زمین کیا ہے، لانتی. کیونکہ زمین جب ہم نے پہلے چیپٹر میں پڑھا تو کیا تھا، سب کچھ خدا نے آدم کی نگہبانی میں دیا تھا، اس کی باغبانی. خدا نے کہا تھا کہ اس باغ کی نگہبانی آدم نے کرنی تھی. تو اس لیے زمین کس کی وجہ سے لانتی ہو گئی، آدم کی وجہ سے، کیونکہ اس نے اس طرح سے اس کی وہ نہیں کی. اسی لیے وہ جب زمین میں بوئے گا تو لکھا ہے کہ اونٹ کٹارے اگیں گے. لیکن جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں تو یہ ہماری ساری سزائیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اور خداوند نے باغ عدن میں سے، جیسا کہ جب آدم اور ہوا نے گناہ کیا تھا تو خداوند نے ان کو نکال دیا تھا، اور لکھا ہے کہ فرشتے کروبی جو تھے وہ کھڑے کیے تھے، اور شعلہ زن جو تلوار تھی وہ کھڑی کر دی تھی، اور آدم اور ہوا کو باغ عدن میں سے نکال دیا تھا، ہے نا. لیکن اب جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں تو وہ کہہ لیں ہیون جو تھا، یا وہ باغ عدن، یا وہ جو زندگی کا پھل جو تھا وہ خدا یسوع مسیح ہے. جب ہم اس میں آ جاتے ہیں تو وہ زندگی، یا باغ عدن میں کہہ لیں، یا ہیون میں، جنت میں کہہ لیں، ہم خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے پھر سے داخل ہو جاتے ہیں. جو کہ اس چیپٹر میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب گناہ کیا تھا، نافرمانی کی تھی، تو ان کو نکال دیا تھا. لیکن خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے پھر سے ہم اس باغ عدن میں، یا ہیون میں، یا جنت میں خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم
जब जिंदगी, क्योंकि खुदा यीशु मसीह क्या है, वो जिंदगी का हकीकी दरख्त है या जिंदगी का दरख्त है। तो जब हम इस खुदा यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं जो कि जिंदगी का दरख्त है, तो वो सारी जो सजाएं हैं वो हमारे ऊपर से खत्म हो जाती हैं और हम फिर से खुदावंद के साथ, जिस तरह लिखा है कि आदम और हवा के साथ बातें किया करता था ठंडे वक्त में, इसी तरह अब खुदावंद पाक रूह के जरिए हम खुदावंद के साथ क्या है, बातें करते हैं। खुदावंद ने हमें फिर से वो कह लें हकूक या वो दर्जा जो है, या वो जो खुदावंद के और हमारे दरमियान एक दीवार आ गई थी, या खुदावंद ने हमें उसमें से, अपनी हुजूरी में से या उस बाग में से निकाल दिया था, हम खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से फिर से उसमें दाखिल हो जाते हैं। तो इसलिए हम खुदावंद यीशु मसीह का जिस कदर भी कह लें कि शुक्र गुजारी करें उतना ही कम है, क्योंकि ये देखें कितनी खूबसूरत वो जगह है। अभी तो हम तस्वीरों में देख रहे हैं, जब खुदा उनके पास जाएंगे आसमान पे और खुदा यीशु मसीह के साथ रहेंगे, तो वो कितना खूबसूरत मंजर होगा, कितनी खूबसूरत वो जगह होगी जहाँ पे आदम और हवा वहां पे रहते थे और कोई वहां पे दुख नहीं था, दर्द नहीं थी, बीमारी नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने नाफरमानी की थी तो वो शर्मिंदगी, वो डर खौफ उनके अंदर आ गया था, झूठ बोलना कह लें या खुदावन से वो भाग रहे थे, है ना, छुप रहे थे, वो सारा कुछ जब हम गुनाह करते हैं अभी भी, तो वो हमारी जिंदगी में आ जाता है। इसलिए हमें खुदावंद के जो हुक्म हैं और खुदावंद की जो बातें हैं, जो खुदावंद ने कानून बनाए हुए हैं, या अ, अगर छोटे बच्चे हम जैसे कह लें कि अभी खुद वो नहीं पढ़ते, तो माँ बाप जो कुछ कहते हैं उसकी अगर हम फर्माबरदारी अपने माँ बाप की करते हैं, तो वो सारे जो हमारा हिस्सा है, जो हमारा अजर है, यानी जो हमें आसमान पे मिलेगा, यानी हम कह लें इस बाग में जाके कह लें, या अदन में, या खुदावंद यीशु मसीह के साथ, खुदावंद बाप के साथ वहां पे रहेंगे, खुदावंद पाक रूह के साथ। तो जब हम नाफरमानी करते हैं, तो जिस तरह ये इनको बाग में से निकाल दिया गया था, अदन में से, हेवन में से निकाल दिया गया था, जैसे कह लें, है ना, उसी तरह से हम भी फिर निकाल, उन्होंने क्या किया था, एक ही नाफरमानी की थी, है ना। तो इसलिए अब ये ना सोचे कभी हो जाए तो हम क्या करें, जल्दी से माफी मांगे, तौबा करें अपने माँ बाप के सामने भी। उन्होंने कुछ आपको कहा है और आपने अनजाने में भी या आपने उनकी बात नहीं मानी, तो आप जरूर अपने माँ बाप से माफी मांगे। और हम बड़े जो हैं वो खुदावंद से माफी मांगे जब हम कभी ऐसे गुनाह में पड़ जाते हैं, ताकि क्या हो, हम इसकी बागे अदन में से, हेवन में से जो आसमानी मकाम है, यानी खुदा का जहाँ तख्त लगा हुआ है, खुदा उनकी हुजूरी वहां पे है, जैसा कि बागे अदन में थी, तो हम उसमें से निकाले ना जाए अगर आप चाहते हैं। ठीक है, तो हम सब जो हैं, बड़े भी छोटे भी जितने भी हम हैं, अगर हम चाहते हैं, देखें कि ये हमें साफ साफ मिलता है कि एक ही उन्होंने नाफरमानी की थी, इसलिए हम में एक भी कोई इस तरह की कोई गलत काम किया है, नाफरमानी की है, कहना नहीं माना बाप का, माँ का या आसमानी बाप का, तो आज मेरे और आपके पास टाइम है कि हम खुदावंद से माफी मांगे, तौबा करें, ताकि हम खुदावंद के साथ रहें, जिस तरह के आदम और हवा जब थे नाफरमानी से पहले क्या थे, वो खुदावंद के साथ रहते थे, खुदावंद जो था उनके साथ आता था और बातें करता था। लेकिन जैसे ही उन्होंने शैतान की बात मानी, सांप की बात मानी, तो खुदा उनकी हजूरी से वो निकल गए, बल्कि दर्द, दुख, तकलीफें, मुसीबतें हमारी जिंदगी में आ जाती हैं। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं, टाइम हमारा काफी हो गया, लेकिन एक काफी अर्सा पहले मैंने एक वीडियो शायद देखी थी कि एक साइंटिस्ट है कि था वो कहता है कि आपको पता है कि जो साइंटिस्ट हैं, जो साइंसदान हैं, वो खुदा को नहीं मानते, उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी हुई। तो
उसने कहा, वो उस इंसान के ऊपर रिसर्च जैसे कर रहा था, तो उसने कहा कि ये इंसान जो है बड़ी ही कहीं कोई आरामदा जगह से आया है, कहीं बड़ी जहाँ पे हर सहूलत जो थी वहां पे थी, क्योंकि इंसान जैसे ही कह लें हम थोड़ा बड़ा होता है, समझ आती है, तो वो अपने आराम के लिए सब कुछ सारी जिंदगी करता रहता है, हो कि मेरा घर अच्छा हो, आरामदेह घर हो, गाड़ी हो, अम, यानी सारी सहूलतें जो है घर की भी, अंदर भी बिजली हो, ऐसे जो भी हमारे आराम के लिए वो ढूंढता रहता है। तो कहता है ये किसी ऐसी जगह से आया है जहाँ पे बहुत ही कह लें आरामदा जिंदगी ये गुजार रहा था, या वहां पे हर सहूलत थी, वो खूबसूरत था। तो इसलिए इंसान जो है वो पूरी जिंदगी अपनी लगा देता है आरामदेह अपनी जिंदगी को बनाने के लिए। तो बिल्कुल इसी तरह देखें कि खुदाउन या आदम और हम हवा की कह लें औलाद हैं, तो वहां पे जिंदगी कितनी खूबसूरत थी, कितनी आरामदेह थी। बस क्या थी, निगहबानी करनी थी, बागबानी करनी थी, और खुदावन के साथ सारा टाइम जो था वो गुजारना था, है ना? खुदावन के साथ बातें करना हर पल, हर तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि वो आरामदायक जिंदगी में जाएं, खुदावंद इस तरह से हमारे साथ बैठा हो, बातें कर रहा हो, और हम उसकी हजूरी में कह लें बैठे रहें, बातें सुने, उसके मुंह की हिकमत की बातें, प्यार मोहब्बत की, शफकत की, तो हम जरूर खुदावंद की जो बातें हैं, जो हुक्म है उसके, उनके ऊपर अमल करें। तो खुदावंद आपको और मुझे भी बरकत दे कि हमारे अंदर से ये नाफरमानी, ये गंदे काम, ये जो खुदावंद को दुख देते हैं, जो हमारे माँ बाप को दुख देते हैं, वो हम ना करें, ताकि खुदावंद हमसे कभी दूर ना, खुदावंद अपनी हजूरी से हमें कभी निकाले ना। तो गॉड ब्लेस यू। बैक टू समर। जी समर है, चले मैं दुआ करती हूँ। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। Hallelujah. Yes, Lord Jesus. खुदाम तेरा शुक्र हो। Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Shikriya katriya rabasiya rabashikriya. Hallelujah. Yes, Lord. खुदाम तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ है बाप। खुदाम खुदाम आज के तेरे इस कलाम के लिए, तेरी मीठी बातों के लिए, कि खुदाम हम तेरे कदमों में बैठे रहे, हम तुझसे कभी जुदा ना हो, हम ताकि खुदा शैतान हमें कभी भी तुझसे दूर न करने पाए, हम तेरी बातों को सुने, तेरे जो हुक्म है उन पे अमल करें, ताकि खुदावन तू हमेशा हमारे साथ रहे, हम कभी तुझसे जुदा ना हो, हमेशा तेरे बाजू में छुपे रहे। खुदा मैं एक एक को, अपने आप को, खुदा ग्रुप के एक एक मेंबर को जो इस वक्त मीटिंग में मौजूद हैं, सबको खुदा यीशु तेरे लहू में छुपा देती हूँ। खुदा तेरे बाजुओं में खुदाम खुदा हम छुपे रहें, खुदाम यीशु के नाम से। खुदाम एक एक के ऊपर खुदाम तेरा गहरा मसा, तेरी गहरी हजूरी छाई रहे। खुदाम कभी भी शैतान हमें तुझसे दूर ना करने पाए, यीशु के नाम से। खुदाम खुदा ऐ बाप, खुदाम हम आज इन हवाओं में, इन फसाओं में इकरार करते हैं कि खुदावंद हमारा शैतान के साथ कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं। हम तुझे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। खुदावंद हम तेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। हम अपने आप को तेरे कदमों में बिखेर देते हैं, खुदावंद खुदा उंडेल देते हैं यीशु के नाम से। खुदावंद खुदा तू हम हमारे बदनों को ले और इस्तेमाल कर खुदावंद खुदा, ताकि हमारे बदनों से खुदावंद तुझे इज्जत और जलाल मिले। खुदावंद खुदा तू हमेशा ऊंचा होता जाए खुदा खुदा, ताकि कभी भी खुदा ये जो सजाएं मिली खुदा खुदा यीशु के नाम से, खुदा जितने भी हम यहाँ पे मौजूद हैं, जितने भी खुदा खुदा तेरी हजूरी में ठहरे हुए हैं, खुदा अपने सरों को तेरी हजूरी में झुकाया हुआ है खुदा खुदा, कोई भी सजा उनके ऊपर आने ना पाए, हमारे ऊपर आने ना पाए। यीशु के नाम से वो सारी सजाएं खुदा तेरे यीशु लहू के वसीला से खत्म हो गई हैं। जो कुछ भी हमारे खिलाफ लिखा गया, बोला गया, पढ़ा गया था, खुदा बाप ने हमारे लिए कुछ कहा था, हमारी नाफरमानी की वजह से खुदा खुदा किसी ने भी हमारे बारे में कुछ लिखा था, कुछ पढ़ा था,
खुदा यीशु तूने वो सारे किलों के साथ जड़ दिया है, वो सारे वो मुशक्कतें, वो दुख, वो तकलीफें, वो सारा डर और खौफ खुदा यीशु मसीह जो खुदा शैतान हमारी जिंदगियों में लेके आता है, वो बीमारी लानतियां खुदा यीशु तूने अपने ऊपर ले ली, ताकि खुदा हमें और हम सब शिफा पाए, बहाली को हासिल करें, निजात को हासिल करें। खुदा यीशु हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि खुदा तूने सब कुछ खत्म कर दिया और तूने नई जिंदगी, ओ खुदा कसरत की जिंदगी का देने का वादा किया। तूने आसमान पे हमें अपने साथ बिठाने का वादा किया है। खुदा तूने कहा कि गलबा पाए हम शैतान के ऊपर, ताकि उस तख्त तक पहुंच सके। यीशु के नाम से खुदा एक एक के ऊपर तेरा गहरा मसा, गहरी हुजूरी छा जाए खुदा, ताकि हम उस जगह तक पहुंच सके। ओ खुदा यीशु के नाम से खुदा जो तूने हमें देने का वादा किया है, तूने कहा कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। जो खुदा यीशु तू हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है खुदा, वो नया यरूशलेम खुदा उस तक हम जाने की तैयारी करें। तेरा खुदा मसा मांगती हूँ एक एक के ऊपर ठहर जाए, ताकि इब्लीस का कोई भी वार हमारे ऊपर चलने ना पाए। हमारे बच्चे हम खुदा फर्मा बरदारी में, ताबियादारी में चलें। खुदा तुझसे कभी बेवफाई ना करें, तुझसे कभी बगावत ना करें। खुदा तुझे कभी खुदा फ्रेब ना दे, बल्कि तेरे हुक्मों पे चलें। खुदा यीशु के नाम से खुदा कोई हम ऐसा काम ना करे, तुझे दुख ना दे, तुझे नाराज ना करें, क्योंकि तेरी नाराजगी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। खुदा हम तेरे बगैर एक सांस भी नहीं लेना चाहते। खुदा तू हमारा महबूब है खुदा यीशु मसीह, खुदा तू हमारा बाप है। हम तुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते खुदा, हम कुछ भी, हमारी कोई वैल्यू नहीं है खुदा तेरे बगैर कुछ भी नहीं। शैतान हमें खुदा पटकता है, हमें दुख देता है, हमें दर्द देता है खुदा जब तू हमारे साथ नहीं होता। इसलिए खुदा हम तुझसे जुदा नहीं होना चाहते खुदा, एक पल, एक लम्हा खुदा एक कदम भी तेरे बगैर हम नहीं चलना चाहते खुदा। जिस तरह मूसा ने कहा कि खुदावंद अगर तू हमारे साथ, हमारे आगे आगे नहीं चलेगा, तो वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा। खुदावंद इसी तौर से आज हम सब मिलकर तुझे खुदा इन हवाओं में, इन फजाओं में इकरार करते हैं कि खुदावंद अगर तू हमारे साथ नहीं चलेगा, तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना चाहते। हम इस दुनिया की ऐशो इशरत के साथ, रंगीनियों के साथ हमारा कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं। शैतान के साथ, उसके कामों के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है खुदा, हमारा रिश्ता तेरे साथ है। तू हमारा बाप है, तू हमारा बचाने वाला है, तू हमारा छुड़ाने वाला है खुदा, तू हमारी जोर है, तू हमारी चट्टान है, तू हमारी छुपने की जगह है खुदा जब तू हमारे साथ होता है, तो तेरे जोर की वजह से, तेरी ताकत की वजह से खुदा हम दुश्मन पे गलबा पाते हैं, हम दुश्मन को पांव तले कुचलते हैं, क्योंकि तू बहादुर मर्द की तरह हमारे आगे आगे चलता है। तू खुदा साहिब जंग की तरह हमारी तरफ से होके जंग लड़ता है खुदा तू खुदा हमारे बच्चों को हमें संभाल के रखता है, हर किस्म के खतरे से, हादसे से, नुकसान से, खुदा दुश्मन के हमलों से खुदा तू बचा के रखता है, क्योंकि तूने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है। यस लॉर्ड खुदा हम डरने के नहीं है। तू हमारा खुदा है, तू हमारी ढाल है, तू हमारी सिपर है खुदा यस्सु के नाम से खुदा दुश्मन का कोई भी वार हमारे ऊपर चलने ना पाए खुदा। तेरी फौजों ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है, तू हमारा हरावल है, तू हमारा चंडावल है। हम डरने के नहीं है, क्योंकि खुदा तूने यस्सु हमें इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, और उसकी सारी कुदरत पर गलबा पाने वाले हैं हम यस्सु के नाम से खुदा हम में से कोई भी, हमारे बच्चे, हम खुदा दुश्मन की फौजों के लिए वो खतरनाक हथियार हैं, वो खतरनाक फौजी हैं खुदा जो दुश्मन पे गलबा पाने वाले हैं। यीशु के नाम से खुदा इस दुआ को हम बड़े ही ईमान और तवक्कल और भरोसे से मांगते और पाते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू।